channel. It is latest video. We will cover everything from vendor reconciliation. Are you ready to learn some tips and tricks to ace your knowledge? Now it's time to get started on this exciting journey. Vendor reconciliation works. क्या आप भी नहीं जानते हाउ वेंडर रिकंसिलिएशन वर्क? आइए जानते हैं एमएनसी वर्सेस डोमेस्टिक के अंदर कि ये होता क्या है. So, vendor reconciliation, most important topic for interview purpose or for accounts payable profile. So, what is vendor reconciliation? So, how to answer? So, you need to start with vendor reconciliation is a process that involves comparing your company financial records with those of your vendor to ensure accuracy and resolve any discrepancies. इसके बाद this process helps in identifying, correcting errors or discrepancies in invoices, payments, and other financial transactions between your company and its vendor. And here is an example of how vendor reconciliation work. So you need why vendor reconciliation do? MNC's company gather information. So collect all relevant documents including purchase orders, invoices, delivery receipt and payments record related to a specific vendor. इसमें क्या होता है, एक तरह से आपके क्रॉस चेक डेटा हो रहा है. इसके बाद एक्चुअल में ये करते क्या हैं, ये आपके एक तरह से क्रॉस चेक करते हैं. ये वेंडर से भी डेटा लेते हैं और अपना भी डेटा. सेकेंड है कंपेयर परचेज ऑर्डर विथ इनवॉइसेस. क्या जो पीओ है उसी के हिसाब से इनवॉइस है. मैच द डिटेल ऑन द परचेज ऑर्डर विद द करस्पॉन्डिंग वेंडर इनवॉइसेस. इंश्योर दैट द क्वांटिटीज प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन अलाइन. जो अलाइन किया गया था क्या उसके हिसाब से ही डिस्क्रिप्शन है जो पीओ में है इनवॉइस पे. ये सारी चीजें उसके अंदर चेक की जाती हैं. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज चेक डिलीवरी रिसिप्ट. So cross-reference the delivery receipt with the invoice to confirm that goods or services were received as per agreement. As per the agreement. ये वो देखते हैं कि जो हमने एग्रीमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग क्या हमें गुड्स मिले हैं या जो हमने सर्विसेज की डील की थी क्या हमें वो सर्विसेज मिली हैं. तो क्रॉस चेक कर रहे हैं यहाँ पे. फोर्थ पॉइंट इज वेरीफाई पेमेंट्स. सो compare the payment record with the vendor invoice to confirm that payments were made accurately on time. क्या वेंडर को पेमेंट सही समय पे हुई है, जो हमारे रिकॉर्ड में है क्या सही है. कंफर्म करते हैं इनवॉइस के साथ जो इनवॉइस पे अमाउंट है क्या वही पेमेंट हुई है और टाइमली हुई है कि नहीं हुई है. नेक्स्ट इज रिकंसाइल अकाउंट्स पेबल लेजर. अब check your accounts payable ledger against the vendor statement. Ensure that balance match and that there are no outstanding or incorrect entries. कि कोई गलत एंट्री तो पास नहीं हुई है या कोई उधार मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब होता है उधार, तो कोई उधार तो नहीं रह गया है. तो ये एक वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक जिसे बोलते हैं हम लेमैन लैंग्वेज में. Sixth is investigate discrepancies. If there are discrepancies, investigate the reason behind them. It could be a pricing error, quantity discrepancies, or time issue between the delivery and invoicing. तो ये इन्वेस्टिगेट करते हैं डिस्क्रिपेंसीज. ये खोज रहे हैं कहीं कोई डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है या गलत क्वांटिटी हो या गलत प्राइस हो या गलत टाइमिंग इशू हो. तो ये चीज़ें वो मैच कर रहे होते हैं. सेवंथ पॉइंट इज कम्युनिकेट विथ द वेंडर. Reach out to the vendor to discuss any discrepancies and resolve issues
This may involve providing additional documentation, requesting correction or negotiating adjustment. इस वेंडर रिकन्सिलेशन के दौरान पाई जाती है तो वो कम्युनिकेट की जाती है वेंडर को, और जो भी है उसे रिजॉल्व किया जाता है, मतलब उसको सही किया जाता है। वैसे तो जो भी वेंडर रिकन्सिलेशन करता है गलती ना ही निकले, क्योंकि फिर उसमें बहुत सारा काम पड़ता है। आगे पॉइंट्स में मैंने मेंशन किया हुआ है, आगे हम डिस्कस करते हैं इसको। सो एट्थ पॉइंट इज अपडेट records. Once discrepancies are resolved, update your records accordingly. This may involve adjusting the accounts payable ledger, updating records, and ensuring accurate financial reporting. अगर डिस्क्रिपेंसीज मिल गई तो आपको लेजर भी सारे अकाउंट्स अपडेट करने पड़ेंगे, एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी, रिवर्सल करने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी यहाँ पे। अब कुछ लोग पूछेंगे रिवर्सल क्या होता है, रिक्लास क्या होती है, रेक्टिफाई कैसे होता है, तो वो हम आगे वीडियोस में कवर करेंगे। यहाँ पे हमें रिकॉर्ड्स अपडेट करने होंगे। देन डॉक्यूमेंट द रिकन्सिलेशन प्रोसेस। So keep the detailed records of the reconciliation process, including any communication with the vendor, adjustment made, and the resolution of discrepancies. This documentation is important for audit trails and future reference. Suppose रिकन्सिलेशन आपने कर दी है, उसका डॉक्यूमेंट नहीं किया, तो जब ऑडिट होगी, ऑडिट में तो आप वो कहेंगे ये एंट्री इतने पे है, इसको नॉक ऑफ किया है, इसका डॉक्यूमेंट, इसका एविडेंस कहाँ है, तो आप ये वहाँ पे अटैच करेंगे। तो इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट द रिकन्सिलेशन प्रोसेस। जो भी आपने रिकन्सिलेशन किया है उसे डॉक्यूमेंट करें। अब बेनिफिट्स ऑफ वेंडर रिकन्सिलेशन, ये भी हम क्यों करते हैं वेंडर रिकन्सिलेशन, क्या फायदे हैं इसके। सो फर्स्ट इज एक्यूरेसी, ensure that financial records accurately reflect transaction with the vendor. Second is compliance, helps maintain compliance with accounting standard and regulatory requirements. Third is cost saving, identify and rectify error, preventing overpayments and avoiding financial losses. एक्यूरेसी समझ गए होंगे आप, कंप्लाइंस, कंप्लाइंस भी समझ गए होंगे, कॉस्ट कॉस्ट सेविंग, अगर जैसे कोई भी एरर रेक्टिफाई कर दी है, गलती से कहीं ओवर पेमेंट हो जाती है तो फिर क्रेडिट नोट इशू करो, बहुत सारा काम बढ़ जाता है, और कई बार वेंडर पेमेंट भी वापस नहीं करते क्योंकि गलती आपकी रहती है उसमें। और फोर्थ इज वेंडर रिलेशनशिप, build trust with vendor through transparent and accurate financial transaction. जब भी आप वेंडर रिकन्सिलेशन करके वेंडर के पास भेजते हो या डेटा भेजते हो, तो उससे क्या होता है, वेंडर को भी ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है, और उसके सामने ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी रहती है सारी चीज़ें, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। प्रोवाइड्स रिलायबल डेटा फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, ये हमारे एनालिसिस में भी काम आती हैं और रिपोर्टिंग के भी अंदर काम आती हैं। नेक्स्ट इज वेंडर रिकन्सिलेशन प्रोसेस। अब हाउ टू आंसर इट। सो फर्स्ट स्टेप इज एक्सट्रैक्ट डाउनलोड वेंडर डेटा फ्रॉम योर रिकॉर्ड। अब आपको क्या करना है, अब वेंडर रिकन्सिलेशन प्रोसेस कर रहे हैं एग्जांपल्स के साथ। हमने क्या किया, जितना भी वेंडर का डेटा था, जो भी ईयर का या फाइनेंशियल ईयर का था, हमने एक्सट्रैक्ट किया, या मंथली वाइज होता है, कई कंपनियों में मंथली वाइज होता है, कईयों में फोर्टनाइट बेसिस पे होता है, कईयों में ईयरली होता है, तो हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। स्टेप 2, so need to ask information from vendor related to invoice issue,
पेमेंट रिसीव्ड, क्रेडिट नोट इशूड इन एक्सेल फॉर्मेट। ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए। थर्ड है नाउ हमने वो दोनों में डेटा निकाल लिया, वेंडर से भी डेटा मंगा लिया। स्टेप 3 के अंदर नाउ वी हैव टू सेट ऑफ डेटा, फर्स्ट आर डेटा, सेकंड वेंडर डेटा जो हमने मेल पे मंगाया। अब हमारे डेटा के अकॉर्डिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,20,000 और वेंडर डेटा के अकॉर्डिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,50,000। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया, समझ रहे हो आप हमें क्यों वेंडर रिकंसिलिएशन करना होता है, क्यों एमएनसीज में ये जरूरी होता है। तो डिफरेंस आ चुका है 30,000 का। अब हमें इसे फाइंड करना है क्या डिस्क्रिपेंसीज थी। तो स्टेप 4 नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर द मिसमैच के। सो रीजंस फॉर मिसमैच क्या होते हैं, देखो इसके सिंपल से मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। या तो इनवॉइस इज नॉट बुक्ड बाय अस, या तो हमने इनवॉइस बुक नहीं किया या वेंडर ने नहीं किया। पेमेंट इज नॉट प्रोसेस्ड बाय अस और वेंडर, या तो हमने पेमेंट कोई प्रोसेस नहीं की या वेंडर ने नहीं की। क्रेडिट नोट डेबिट नोट इज नॉट प्रोसेस्ड बाय अस और वेंडर, या इनकरेक्ट बुकिंग ऑफ इनवॉइस पेमेंट बाय अस और वेंडर, या तो वेंडर ने कोई इनवॉइस बुक गलत बुक कर लिया या हमने कोई इनवॉइस गलत बुक कर लिया। टीडीएस डिडक्शन कंसीडर बाय अस बट नॉट बाय द वेंडर, हमने तो टीडीएस काट लिया ठीक है वेंडर का, पर वेंडर ने वो कंसीडर ही नहीं किया। तो वो जो गैप है वो हमें फाइंड करना, मतलब जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो हमें फाइंड करनी है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा गैस करो। अब डिस्क्रिपेंसीज फाइंड हुई है तो क्या करेंगे, स्टेप 5 में पुट आवर क्लोजिंग बैलेंस एज अ बेस बैलेंस एंड डू ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर मिसमैच। यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है हम उसे क्या करेंगे बेस बैलेंस मान लेंगे एंड उसमें एडजस्टमेंट करेंगे क्या एरर है। स्टेप 6 आफ्टर दीज एडजस्टमेंट वी गॉट क्लोजिंग बैलेंस एज पर वेंडर बुक्स। एडजस्टमेंट वी गॉट क्लोजिंग बैलेंस एज पर वेंडर बुक्स। सो यहाँ से हम एक चीज़, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे वेंडर रिकॉन्सिलेशन एग्जाम्पल है। यहाँ पे मान लो जो क्लोजिंग बैलेंस एज पर आवर बुक बाय एनकेएस 1,20,000 ऐड क्या किया, सपोज वेंडर ने कोई इनवॉइस बुक ही नहीं, मतलब हमने वेंडर का इनवॉइस बुक ही नहीं किया, इनवॉइस नॉट बुक्ड बाय अस 10,000, पेमेंट नॉट प्रोसेस्ड बाय वेंडर, पेमेंट ही प्रोसेस नहीं करी वेंडर ने या हमने, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हो इस तरह से, यहाँ पे अस पेमेंट नॉट प्रोसेस्ड बाय अस 20,000 की, टीडीएस नॉट कवर्ड बाय वेंडर, अब यहाँ पे वेंडर ने भी कवर नहीं किया है तो हमने ये भी लिख दिया। अब इनवॉइस नॉट बुक्ड बाय वेंडर, यहाँ पे इनवॉइस भी बुक्ड नहीं किया वेंडर ने, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है एज पर वेंडर बुक्स आ रहा है। जो ऐड किए हैं हम वो वेंडर को इजीली बता देंगे कि ये चीज़ें हमने ऐड की हैं और ये चीज़ हमने लेस करी है, तो वो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। स्टेप 7 is nothing, so we can say vendor reconciliation is done. So thanks for joining me today and I hope you learned something new. See you in the next video. Vendor reconciliation समझ में आ गया होगा, बहुत इजी टॉपिक है, मैंने और इजी कर दिया है इसको आपके लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।